कि soil also sequester carbon dioxide. Sir, can we come to the question now? सर मूव कीजिए नीचे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा स्क्रीन पे ले आइए। बस बस सर। Now the passage is asking which of the following assumptions have been made. assumption का सबसे पहले मतलब होता है कि जो राइटर है वो क्या सोच के लिख रहा है, मतलब उसने क्या अज्यूम किया है। और जो assumption होती है कई बार हमें खुद की assumption नहीं बनानी है, assumption सिर्फ वही होगी जिसका पैसेज में हमें लिंक मिलेगा। Let's see now. First is large scale soil erosion is major reason for widespread food insecurity in the world. Second is soil erosion is mainly anthropogenic. Sustainable management of soils helps in combating climate change. ठीक है, if we see these options, the first is large scale soil erosion is reason for the widespread food insecurity in the world. The author, if you see, author has talked about the मतलब food security and कि soil erosion is a headache or soil erosion is a issue for food insecurity, but he has not talked anywhere कि it is the major reason for widespread reason of food insecurity. Second है soil erosion is mainly anthropogenic. अब आपको अगर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देखते हैं ना, और आपने जनरल मतलब अपना जनरल स्टडीज पढ़ी है, तो आपकी जनरल नॉलेज यहाँ पे कंप्लीटली इंटरफेयर करेगी। आपको लगेगा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, बट विच इज नॉट ट्रू। पैसेज में कहीं पे भी ये बात नहीं हुई है कि सोइल इरोजन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक है या फिर वाइड स्प्रेड या मेजर रीजन है फूड इनसिक्योरिटी का। पैसेज इज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द फूड प्रोड्यूसर, बट मेजर है माइनर है नॉट गिवन। सेकंड थिंग एंथ्रोपोजेनिक है नेचुरल है, इट इज नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट इट। Third is sustainable management of soil helps in combating the climate change. Yes, this is given because the author is saying the soil trap huge quantities of carbon dioxide in form of organic carbon and prevent it escaping from the atmosphere. So third is the right option. अब अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपकी जनरल नॉलेज की वजह से आपको लगेगा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, बट जो यूपीएससी ने आंसर दिया है वो थर्ड आंसर दिया है, और वो सही भी है क्योंकि पैसेज में कहीं पे भी हमें सिर्फ पैसेज पे स्टिक करना है। अगर जो चीज पैसेज पे नहीं दी, अजम्पशन भी अगर लेनी है तो वो अजम्पशन हमारी खुद की नहीं होगी, पैसेज से लिंक्ड होगी। तो यही चीज इस फर्स्ट पैसेज से आई वांट टू कन्वे यू कि स्टिक टू द पैसेज। एंड जनरल नॉलेज इंटरफेरेंस करेगी, बट आपको चीजों को अंडरलाइन करना है कि अच्छा इसने ये 3 स्टेटमेंट आंसर में पूछे हैं, क्या ये स्टेटमेंट्स के बारे में उसने कहीं बात किया है, इज दे कैन आई एस्टेब्लिश अ लिंक विद द पैसेज। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो यू विल बी easily able to eliminate. We know soil erosion is mostly anthropogenic now our times, but it is not given in the passage. If you see, he is just talked about कि जो सारा फूड है वो सोइल में ग्रो होता है, सोइल वैनिश होती जा रही है और billions of fertile soil is lost to the erosion, but he has nowhere talked about कि where it is lost. So that's why. So answer would be 3. One thing I also wanted to share with you कि if you see the kind of passages in last 7 to 8 years, the passages are about sir, am I audible? Yes. Yes.
Okay. If you see the kind of passages, या तो genetic modification पे, climate change, soil erosion, then FDI, FBI, and then democracy. These are the themes. मतलब there are, if you analyze the papers, there are themes. So when you try to solve the previous year question paper, try to go as per themes, and you will be better able to understand कि वो क्या option गलत दे रहा है, what he is asking. There is a repetition in passages also, so that you will find. Let's move on to the next passage. The next passage is, what stands in the way of genetic spread and careful adoption of genetic modification technology is intellectual property rights regime that seeks to create private monopolies for technologies. If GM technology is largely corporate driven, it seeks to maximize profit, and that too in a short run. That is why corporations make major investment for herbicide tolerant and pest resistant crop. Such properties have only a short window. As soon as enough pest and weed will evolve to overcome such resistance, this suits the corporations. The National Farming Commission pointed out priority must be given to genetic modification to incorporation of genes that help impart resistance to drought, salinity, and other stresses. Now, what is the most logical, rational, and crucial message conveyed by the above passage? इसमें जब भी होगा हम एक कंक्लूजन की तरफ अप्रोच करेंगे जब भी वो ऐसी रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज पूछे. अब इस पैसेज को अगर ब्रेक डाउन करे तो उसने 3 बातें बोली है. फर्स्ट थिंग इज कि जो जीएम क्रॉप्स है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, is a big problem. Private companies are trying to create monopolies, और उन monopolies का क्या मतलब है? सिर्फ शॉर्ट रन में प्रॉफिट करना, और उनका जो टारगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? हर्बिसाइड और पेस्ट रेजिस्टेंस. क्योंकि उनसे क्या, उनको डबल इनकम होगी, एक तो जीएम क्रॉप्स की वजह से, दूसरा जो हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स बेचेंगे उनकी वजह से. नेक्स्ट इज, बट ये इफेक्टिव नहीं है लॉन्ग टर्म में. क्यों? क्योंकि जो पेस्ट और वीड है वो इवोल्व होके फर्दर रेजिस्टेंट हो जा रहा है उनके. और देन ही हैज, थर्ड थिंग ही हैज सेड कि हमें जेनेटिक, मतलब ही हैज सेड कि हमें चाहिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन, लेकिन एज फार्मर कमीशन हैज पॉइंटेड आउट कि इनमें ऐसी वेराइटीज जो कि ड्रोट, सैलिनिटी और स्ट्रेस को कम करे. सर, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. Now look at the questions. Public research institutions should take a lead in GM technologies and prioritize the technology agenda of India. Next, developing countries should raise the issue in WTO and ensure the abolition of intellectual property rights. Now, in this statement, see, author has talked about intellectual property rights in the passage, but he has not talked about or not given any hint ki we should fight for the issue at WTO. Next, private corporations should not be allowed to do agribusiness in India. This is an extreme statement. And next, present Indian circumstances do not favor cultivation of genetically modified crops. The Farmer Commission itself has said that we should invest in drought tolerant and stress tolerant kind of, so this should not be correct. The only option now left is first option. अब पैसेज में गिवन है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट किसके लिए? मोनोपोलीज के लिए, प्रॉफिट्स के लिए. और जीएम क्रॉप्स जरूरी भी है किस लिए? ड्रोट रेजिस्टेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए. तो कौन इन्वेस्ट करेगा? If you want to draw out most logical conclusion from these two statements, what would be the most logical conclusion? That should be कि public research institutions should take a lead in GM technology and prioritize the technological agenda. Hence, A should be the most appropriate and most logical conclusion that we can derive the statements. If passages are long and there are 2-3 things, so you have to pick the most appropriate and उसमें आप statements को break कर लो.
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हुई है, उनकी मोनोपोलीज के बारे में बात हुई है, जीएम के बारे में बात हुई है कि नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने खुद कहा है कि हमें जीएम क्रॉप, ऐसी जीएम क्रॉप चाहिए जो इन चीजों को मैनेज कर पाए। तो फोर्थ स्टेटमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है कि प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसेस डू नॉट फेवर, नो वी आर ट्राइंग टू फेवर, लेकिन विच टाइप ऑफ क्रॉप्स वी आर ट्राइंग टू फेवर as National Farmer Commission has mentioned, that type of. So what is the most logical conclusion that can be drawn? Public research institutions should take the lead in GM technology and prioritize the technological agenda. Next, sir. Next is, which of the following assumptions have been made? Shyam, shall I explain the confusion again? दोनों मतलब कि दो तो एलिमिनेट हो गए थे, बी एंड सी, हाँ, फिर ए और डी के अंदर रहा था। हाँ, उसमें से कौन सा चूज करना था? हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि अब इंडिया की नेशनल कमीशन का रिकमेंडेशन दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं तो हमें जरूरत है ना। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरीके से एलिमिनेट होगा, इस तरीके से लास्ट ऑप्शन कट हो जाएगा, फिर ये ऑप्शन ही बचता है ना। हाँ, ठीक, थैंक यू। Next is, which of the following assumptions have been made? The issue of effects of natural calamities on agriculture is not given due consideration by GM technology companies. In long run, GM technology will not be able to solve agriculture problem arising due to global warming. अब जो लास्ट स्टेटमेंट है वो खुद ही बोल रहा है कि जो ड्रॉट टॉलरेंट स्ट्रेस जो है, दैट शुड बी आवर एजेंडा। तो इसका मतलब क्या है, जीएम टेक्नोलॉजी तो सोल्व कर सकता है ना आराम से। दैट्स व्हाई फार्मर कमीशन हैज सेड कि वी शुड मूव टुवर्ड्स, तो सेकंड स्टेटमेंट वुड बी आउटराइटली रॉन्ग। Then the next first statement is the issue of effect of natural calamities. Ab now what we have talked in the passages ki we have talked about private companies and their monopolies, और private company monopolies है और वो किस पे वो कर रही है, in the pest resistant and weed resistant। तो इसीलिए फार्मर कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमें क्लाइमेट से रिलेटेड, स्ट्रेस से, सैलिनिटी से, इनसे रिलेटेड हमें जीएम टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी by this analysis, first statement should be correct and second should be wrong, hence answer is 1 in this question. हेलो, हाँ, सेकंड ऑप्शन के अंदर मतलब उसने ये बात ही नहीं की ना कि ग्लोबल वार्मिंग की, मतलब उसने अजम्पशन नहीं लिया होगा ना, इसलिए रॉन्ग हुआ ना। हाँ, क्योंकि उसने लिंक दिया है ना कि फार्मर कमीशन क्या बोल रही है, हमें ड्रॉट टॉलरेंट दिस कि प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन्स दैट हेल्प इम्पार्ट रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, सैलिनिटी एंड अदर स्ट्रेसेस। अदर स्ट्रेसेस क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस आएगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज नहीं हो सकती। ये चीज आपकी तब सोल्व होगी व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। If you practice more and more, you will be able to see कि after 3 test papers, your 80 to 90% questions will be correct. Okay, but you have to read really very very carefully, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि स्ट्रेस के कारण क्या होता है, आधा ब्रेन तो वैसे काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ट्राई टू डू पैसेजेस इन फर्स्ट 40 मिनट्स ओनली, क्योंकि उस टाइम में आपका ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश होगा एंड यू विल बी पीक थ्रू कि हाँ अच्छा कहाँ ट्रैप दिया है, तो वो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है, मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर हार्मफुल। Britain's invasive plants are not widespread, not spreading especially quickly, often less of a nuisance than vigorous natives such as bracken. The arrival of new species almost always increase
biological diversity in the region. In many cases, a flood of newcomer drives no native species to the extinction. One reason is that invaders tend to colonize disturbed habitats like polluted lakes and post-industrial wastelands where little else lives. They are nature's opportunists. Sir, can we move to the questions? अब इसमें most rational interference पूछा है. Now look at the first statement. Invasive species should be used to rehabilitate desert areas and wastelands of the country. अब उसने जो statement दिया है, sir, can we move to the passage again? He has said one reason that invaders tend to colonize disturbed area. अब उसने बोला है कि invasive species जो है वो polluted lakes और post industrial wasteland, मतलब जो खराब लैंड है और जहाँ पे कोई और लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही है, उसको वो जो है रिहेबिलेट कर सकती है, उसको इन्वेड कर सकती है, वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकती है. बट नाउ इन द पैसेज इज गिवन, इन द क्वेश्चन इज गिवन, should be used to rehabilitate desert areas and wastelands of the country. अब डेजर्ट एरियाज की तो अपनी एक डाइवर्सिटी होती है ना, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सॉरी एक अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है ना. उसने बोला है कि वेस्टलैंड या पोल्यूटेड लैंड्स जहां पे और कोई लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही है. दूसरा उसने स्टेटमेंट क्या दिया है, द अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज. He has not said always, he has said almost always. ये इस टाइप के ट्रैप आपको आगे भी कई पैसेजेस में मिलेंगे कि ऑलमोस्ट ऑलवेज करती है, पर जरूरी नहीं है वो हर बार करती है. ठीक है, तो इस वे से पहला स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे उसने वर्ड को इंटरफेयर कर दिया. डेजर्ट एरिया जरूरी थोड़ी ना है कि बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो. डेजर्ट एरिया की तो अपनी एक बायोडाइवर्सिटी होती है ना, इफ यू सी दैट. तो उसको हमें रिहेबिलेट क्यों मतलब उसको हमें रिहेबिलेट क्यों करना है? और उसने ये नहीं कहा है कि हमेशा जो इन्वेजिव स्पीसीज है वो हार्मफुल नहीं होंगी. ऑलमोस्ट ऑलवेज बट नॉट ऑलवेज. नेक्स्ट इज अ लॉ अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी. ऐसी कहीं पे भी कोई भी बात नहीं हुई है पैसेज में. नेक्स्ट इज समटाइम्स कैंपेन अगेंस्ट द फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस. फोर्थ इज फॉरेन प्लांट्स शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. क्या ये इंटरफेरेंस हम निकाल सकते हैं? इन दिस केस सेकंड और थर्ड ऑप्शन सिमिलर लगा. देखो, सेकेंड ऑप्शन इज लॉज अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी. क्या उसने कहीं पे भी बात की है कि लॉ जो है अननेसेसरी है? उसने ऐसे तो पैसेज में कहीं पे भी बात नहीं हुई है ना. अब आपको जो कंफ्यूजन होगी वो होगी सी और डी ऑप्शन में. हाँ है उसमें सी लग रहा था उसमें. हाँ. डी है ना. अब इसका आंसर जो है वो है सी. अब उसने ये बता पूरे पैसेज में, अगर इफ यू सी होल पैसेज, he has given a positive side to the invasive species plant, invasive species ना. he has said कि ना तो इतने terribly successful होते हैं ना इतने ज्यादा harmful होते हैं. अब इसी से आपका फोर्थ स्टेटमेंट आ जाएगा. सर एक बार क्वेश्चन पे करना. foreign plants should be used to increase the biodiversity ऑफ अ कंट्री. अब उसने पहले ही स्टेटमेंट में बोल दिया है कि हमेशा वो सक्सेसफुल भी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए और हमेशा हार्मफुल हो. अब उसने वो बोल, अब किसी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करनी है तो वहां पे सक्सेसफुल भी तो होना पड़ेगा उनको, एंड दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. तो फॉरेन प्लांट्स कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी द कंक्लूजन और मोस्ट लॉजिकल इंटरफेरेंस की उनको बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाना चाहिए. इफ यू सी दैट नाउ द स्टेटमेंट नंबर सी, sometimes the campaigns against foreign plants are pointless. हाँ, this can be a conclusion, this can be our interference then can be made कि
जो सोशल मीडिया कैंपेन्स होते हैं या फिर जो इनके अगेंस्ट जो भी ड्राइव्स होती हैं वो कई बार पॉइंटलेस होती है, मतलब बिना सोचे समझे, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ फायदे भी तो हैं, और दूसरी बात to a point they are not very harmful and not very successful in the other countries also, so that's why we should not be very much bothered about them. तो इसमें क्या है, ऐसे स्टेटमेंट्स पे कई बार बहुत ज्यादा इम्प्लाइड आंसर्स होते हैं, तो इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, उसके लिए आपको अपने पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से कि एक एक वर्ड को आप अंडरलाइन करो कि वो किस चीज की बात कर रहा है। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे इफ यू सोल्व द प्रीवियस ईयर जिसमें उसने सिमिलर टाइप का ट्रैप दिया है, उसने दिया कुछ है लेकिन उसने सिर्फ एक वर्ड बदल दिया और उसी वर्ड से पूरी कहानी बदल जाती है। तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू द पैसेज वर्ड बाय वर्ड। और एक बार सर पैसेज में लेके आना, पैसेज की तरफ सर ऊपर मूव करो इंग्लिश वाले। ये जो स्टेटमेंट है द अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे और बहुत सारे पैसेजेस में मिलेंगे जहां पे सिर्फ वो वर्ड जनरली, ऑलमोस्ट ऑलवेज, अभी आगे एक और पैसेज में हम डिस्कस करेंगे जिसमें सिमिलर टाइप के वर्ड्स यूज करे गए हैं और उसी से रिलेटेड फिर वो स्टेटमेंट देता है, और वो स्टेटमेंट हमें लगता है कि 100% ट्रू है, लेकिन वो ट्रू नहीं होगा 100%। इसमें जनरल स्टेटमेंट दिया होगा लेकिन वहां पे वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देगा और वो यहीं से कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। जब हम ऑलमोस्ट ऑलवेज पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे दिमाग से गायब हो जाता है, ऑलवेज हमारे दिमाग में फिर भी रहता है, तो ऑलवेज को हम फिर एब्सोल्यूट समझ लेते हैं। तो ये वाली चीज आप बहुत सारे पैसेजेस करोगे, उस हर पैसेजेस में आपको ये वाली चीज मिलेगी एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सर कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पैसेज? Okay, diarrheal deaths among Indian children are mostly due to food and water contamination, use of contaminated groundwater and unsafe chemicals in the agriculture, poor hygiene in storage, handling of food items, of food cooked and distributed in hygiene surrounding. There are myriad of factors that need regulation and monitoring. People need to have awareness of adulteration and ways of complaining to the relevant authority. Surveillance of foodborne diseases involves number of government agencies and entails a good training of inspection staff. Considering the portion of urban population that depends on street food for its daily meals, investing in training and education of street vendors is of great importance. So move to the questions. Now, which of the following assumptions have been made? As I have told before also कि assumptions जरूरी नहीं है कि जो मतलब many people say कि assumption कभी भी आपको पैसेज में नहीं मिलेगी, नहीं, assumption आपको पैसेज में भी मिल सकती है, लेकिन डेफिनेटली अजम्पशन आपको पैसेज से लिंक करके मिलेगी। आप खुद की अजम्पशन नहीं बनाओगे। अगर पैसेज में लिंक है तो ही वो अजम्पशन वैलिड होगी, अदरवाइज अजम्पशन नहीं वैलिड होगी। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले पैसेज में देखा था, उसने सोइल इरोजन की बात की थी लेकिन कहीं पे भी उसने नेचुरल है, एंथ्रोपोजेनिक का कहीं बात नहीं की थी। इसीलिए ऑल्दो जर्नल स्टडीज के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सही था, लेकिन वो अजम्पशन पैसेज के अकॉर्डिंग रॉन्ग थी, और इसीलिए थर्ड स्टेट, इसीलिए हम गैस नहीं कर पाते कि अच्छा एक्चुअल पैसेज का आंसर क्या होगा। इसमें भी सेम चीज। अब इसमें तो अजम्पशन डायरेक्ट दी है कि देयर आर myriad of factors that are involved in food safety. सर कैन वी मूव टू द पैसेज एक बार? दिस इज गिवन कि देयर आर myriad of factors that need regulation and monitoring. तो उसने खुद ही बोल दिया है कि बहुत सारे फैक्टर्स है जिनका हमें रेगुलेशन और मॉनिटरिंग चाहिए। तो हाँ, फूड सेफ्टी क्या है, एक मल्टी प्रोंग अप्रोच हमें चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट सर एक बार क्वेश्चन। तो इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है,
उसने सही अज्यूम किया है कि हाँ फूड सेफ्टी एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है और बहुत सारे हमें सॉल्यूशन चाहिए। उसने खुद ही बात की है कि हमें स्ट्रीट वेंडर्स को भी ट्रेन करना चाहिए और पीपल के अंदर भी अवेयरनेस चाहिए रिगार्डिंग द अडल्ट्रेशन एंड वेज टू कंप्लेनिंग टू रेलेवेंट अथॉरिटीज। अब आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, ये एक बार में नहीं होगा, जब आप बार बार सोल्व करेंगे पूरे, अगर आपने 7-8 साल के पैसेजेस कर लिए तो ये चीज आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगी। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्टेटमेंट, great investment need to be made in developing the manpower of surveillance and training staff. Yes, this is also correct. उसने खुद ही बोला है कि हमें क्या है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में और स्टाफ में बहुत ज्यादा हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सर्विलेंस ऑफ नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एंटेल्स गुड ट्रेनिंग एंड, और इन्वेस्टमेंट किस में चाहिए, स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर भी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये अजम्पशन उसने बोला है। सर कैन वी come to the question? Next is India needs to make sufficient legislation for governing food processing industry. सर एक बार इसमें आएंगे स्टेटमेंट में। अब नाउ इफ यू लुक एट द पैसेज, गवर्नमेंट ने इसमें कहीं पे भी फूड सेफ्टी की बात की है लेकिन कहीं पे भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात नहीं की। हाँ इनडायरेक्टली आप मान सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको क्या बोलूंगी, आपको नोटिस करनी चाहिए, एक सेकेंड, दूसरी चीज व्हाट यू शुड नोटिस इज कि उसने बोला है कि रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की बात कही है, कहीं पे भी उसने बात की है कि हमारा लेजिस्लेशन सफिशिएंट नहीं है, हमें और लॉ बनाने की जरूरत है। ही सेड कि दैट वी नीड रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। अब रेगुलेशन और मॉनिटरिंग क्या है, लॉ होगा उसके बाद ही रेगुलेशन और मॉनिटरिंग होगी ना। तो क्या है कि हमारे पास लेजिस्लेशन तो है लेकिन क्या है, रेगुलेशन और मॉनिटरिंग नहीं है। अब उसने क्या किया, सिंपली सर एक बार थर्ड स्टेटमेंट पे, नीड टू मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्या हमें लेजिस्लेशन की जरूरत है, क्या उसने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करी है? तो ये सारी चीजें इस पैसेज में कहीं पे भी लिंक नहीं है। हाँ जनरल नॉलेज से आप इनको कहीं पे भी लिंक कर सकते हो, आपने जो भी पढ़ा, लेकिन इफ यू स्ट्रिक्टली स्टिक टू द पैसेज, ही हैज टॉक्ड अबाउट रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग, नॉट टॉक्ड अबाउट लेजिस्लेशन, ही हैज टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट फूड, नॉट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। So by that logic, third statement is incorrect and answer will be 1 and 2. इसमें थर्ड ऑप्शन यू कैन काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन होगा तभी ज्यादा जो है ना सीखोगे, और इसके बाद लेक्चर तुम्हें करना भी है। मैं आज 1 घंटे बाद ही स्टॉप करवा दूंगा ताकि तुम करो, फिर भले कल कंटिन्यू हो जाएगा। यस आस्क। इसमें थर्ड ऑप्शन भी तो हो सकता है क्योंकि पैसेज में यहाँ पे बोला है कि पुअर हाइजीन इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फूड आइटम्स। तो फूड प्रोसेसिंग, वहां से हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की नीड है। नहीं, रेगुलेशन की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है, आपको स्ट्रिक्टली पैसेज को स्टिक करना है। उसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि सफिशिएंट लेजिस्लेशन हमारे पास नहीं है इसलिए हमें सफिशिएंट लेजिस्लेशन की जरूरत है। ही हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। ये ऊपर वाले भी एक पैसेज में आया था और अभी भी आ रहा है। आपको इन वर्ड्स को टोटली स्टिक करना है तभी आपका आंसर सही आएगा, और ये आगे इसी पैसेज में नहीं बहुत सारे पैसेजेस में ऐसा होगा। ओके हाँ, और ये आपका प्रैक्टिस से आएगा। ऐसे स्टेटमेंट्स आपको जरूर अंडरलाइन करने हैं। थैंक यू। और ना मोस्टली जो अजम्पशंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो मतलब थोड़े रॉन्ग हो जाते हैं ना, कि मतलब मेन प्रॉब्लम अजम्पशन में ही आती है कि अजम्पशन में इसलिए मेन प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम अपने जनरल नॉलेज वाली भी अजम्पशन ले आते हैं। जब भी आप कोई अजम्पशन पढ़ो उसको पैसेज से लिंक करो, क्या पैसेज से इसका कहीं पे भी लिंक बैठ रहा है, क्या ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं पे भी पैसेज में गिवन है। अच्छा अब्सर्ड अजम्पशन कहीं पे भी नहीं होगी जहां पे पैसेज में अगर कुछ नहीं दी। एंथ्रोपोजेनिक हमने फर्स्ट पैसेज में पढ़ा, एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशंस होते हैं
उनसे हमें पता है कि सोइल इरोजन का मेन कारण है जो हम डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये अजम्पशन सही है उसके हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से या जनरल साइंस के हिसाब से, पर पैसेज में उसने कहीं पे भी ये जिक्र ही नहीं किया कि एंथ्रोपोजेनिक है, नेचुरल है। ही जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ये सोइल इरोजन है, उससे ये दिक्कतें हो सकती है। तो बाय दैट वे पैसेज पे स्टिक रहना है कि हाँ, अगर कुछ लिंक लग रहा है तो आंसर होगा, नहीं तो फिर भले वो नहीं जनरल में हो सही है बट नहीं होगा ना। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, मतलब डायरेक्ट लिंक या रेफरेंस होना चाहिए पैसेज, डायरेक्ट। हाँ, यस। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पैसेज पे मूव कर सकते हैं। Low and Internet of Things devices are cheap commodity items. Addressing security would add to the cost. This class of item proliferating with new application, new home appliances, thermostats, security and monitoring devices and personal convenience devices are a part of Internet of Things. So are the fitness trackers, certain medical implants and computer-like devices in the automobile. The Internet of Things is expected to expand exponentially, but new security challenges are daunting. Now, question is, which of the following statements is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Developing of enabling technology in India can be a big boost to its manufacturing sector. Does he has talked about Indian manufacturing sector anywhere? Yes. No. Indirectly, if you see all these appliances, thermostat, personal care devices, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, बट कहीं भी उसने ये चीज बात करी है इंडिया के रिगार्डिंग या उनको मैन्युफैक्चरिंग के तो जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको ये स्टेटमेंट सही लगेगा और वहां पे दिमाग काम नहीं करता है। तो आपको तो ये चीज इसलिए आपको रोज रोज मतलब अगर आप रोज 4-5 पैसेज करते तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। यू विल स्टार्ट सेपरेटिंग द थिंग्स। बात यही है, फर्स्ट जीएस का पेपर होता है, सेकंड आपका सी सेट का पेपर होता है, तो वी आर नॉट एबल टू सेपरेट जीएस विद द कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर आप जनरल नॉलेज के हिसाब से जाएंगे तो ए स्टेटमेंट सही है कि हाँ इंडिया के उसको बूस्ट मिल सकता है, बट इन पैसेज डू ही हैज टॉक्ड एनीवेयर अबाउट manufacturing and gain India can get from this? No, he has not. So first statement is wrong from this analysis. Next, sir. India is not fully yet ready to adopt Internet of Things in view of imminent security challenges. अब उसने कहीं इंडिया की बात करी है पैसेज में कहीं पे भी कि इंडिया के पास सिक्योरिटी चैलेंज है, डिजिटल उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या उसने कहीं पे भी ये बात करी है? उसने इन जनरल बात करी है। बाय दिस वे सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है, हालांकि जीएस के हिसाब से आपको ये स्टेटमेंट भी सही लगेगा। नेक्स्ट, इंडिया इज नॉट येट फुली रेडी, सॉरी ये तो हो गया। लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद डेवलपमेंट ऑफ चीप लो एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। अब ये स्टेटमेंट आपको सही लग सकता है बिकॉज उसने बात करी है पर्सनल कन्वीनियंस डिवाइसेस एंड देन ही हैज टॉक्ड अबाउट मेडिकल इम्प्लांट, कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस इन सॉरी पर्सनल कन्वीनियंस डिवाइसेस की आप उसने बात करी है, होम अप्लायंसेस की बात करी है। तो इससे देख के आपको लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो आपको थर्ड, सर एक बार क्वेश्चन पे आना, थर्ड स्टेटमेंट आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, life becomes comfortable with development of cheap, low and Internet of Things devices. As we go digital, we must recognize the huge threat to internet security from some IoT devices. अब उसने पूछा है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंटरफेरेंस। अब अगर आप इस पैसेज को जैसे मैंने पहले बताया था ब्रेक करोगे तो आप भी दो चीजों में ब्रेक करोगे, एक लो एंड इंटरनेट ऑफ
लो एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस है जो हमें कंफर्ट दे रहे हैं। दूसरा उसने क्या कहा है कि सिक्योरिटी चैलेंज एक बहुत बड़ा इशू है इनके साथ, ठीक है। अब लॉजिकल जो इंटरफेरेंस निकलेगा इसमें से, जो मोस्ट लॉजिकल स्टेटमेंट आपको निकलेगा, वो इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ही निकलेगा, कंक्लूजन ही निकलेगा। थर्ड स्टेटमेंट इसी का एक एस्पेक्ट है। कंक्लूजन, वन एस्पेक्ट कैन बी कंक्लूजन, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि अ सिंगल एस्पेक्ट, मतलब ऐसा होगा कि कोई एक एस्पेक्ट अपने आप में कंक्लूजन हो पूरा पैसेज का, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इस हिसाब से ठीक है, बट क्या ये मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट रैशनल इंटरफेरेंस है इस पूरे पैसेज का एक कंक्लूजन है? नहीं। लेकिन अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखो कि एज वी गो डिजिटल वी हेलो आ रही है वॉइस, आ रही है। हाँ, एज सर एक बार ऊपर थोड़ा मूव करना। एज वी गो डिजिटल, सर ऊपर, सॉरी सर नीचे 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 क्वेश्चंस में फोर्थ लास्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन। As we go digital, we must recognize the huge threat to internet security from Internet of Things. हाँ, पूरे पैसेज का इन्फरेंस देखे तो हाँ यही इन्फ्रेंस है जो मोस्ट लॉजिकल है। इसमें COD में कंफ्यूजन होगा, पर जब भी आप ऐसा वो आए तो उसको आप ब्रेक करें, मतलब अच्छा ये दो चीजें हैं या तीन चीजें जिनके बारे में पैसेज बात कर रहा है, और फिर उन्हीं से एक कंक्लूजन ड्रॉ होगा आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसका आंसर इज डी। Sir, can we move to the next passage? It is no longer enough for us to talk about providing for universal access to education. Making available school facilities is an essential prerequisite, but not sufficient. To ensure that all children attend school and participate in learning process. The school may be there, but children may not attend, or they may drop out after a few months. Through school and social mapping, we must address the entire gamut of social, economic, and cultural, indeed linguistic and pedagogic issues, factors that prevent children from weaker section and disadvantaged group, as also girls from regularly attending and completing elementary education. The focus must be on poorest and most vulnerable, since these groups are at the greatest risk of violation or denial of right to education. The right to education goes beyond free and compulsory education to include education for all. The quality is an integral part of right to education. If the education process lack quality, children are being denied their right. The right to right of children to free and compulsory education lays down that curriculum should provide for learning through activities, exploration, and discovery. This places an obligation on us to change our perception that children as a passive receiver of knowledge, and to move beyond convention of using textbooks as the basis of examination. The teaching learning process must become stress-free, and a massive program for curriculum reform should be initiated to provide for child-friendly learning system that is more relevant and empowering. सर आगे करें। Teacher accountability system and process must ensure that children are learning and that right to learn in a child-friendly environment is not violated. Testing and assessment system must be re-examined, redesigned to ensure that these do not force children to struggle between school, tuition centers, and bypass childhood. अब है according सर एक बार क्वेश्चंस पे आएंगे हम। According to the passage, which of the following is paramount importance under right to education? अब first statement, sending children to school by all parents. अब कहीं भी क्या इसने बात करी है कि sending of children to school by all parents, क्या ये paramount important है? It is essential, but सर एक बार ऊपर आएंगे।
उसने यूनिवर्सल एक्सेस की बात करी है और मेकिंग स्कूल फैसिलिटीज इज एसेंशियल प्रीरिक्विजिट बट नॉट सफिशिएंट। उसने कहीं पे भी पैसेज में ये बात नहीं कही कि मतलब पेरेंट्स चिल्ड्रंस को अगर स्कूल भेजे ये एसेंशियल प्रीरिक्विजिट है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है स्कूल के लिए। हाँ, अगर जीएस के हिसाब से हम देखते हैं और वैसे कॉमन सेंस के हिसाब से देखते हैं तो ये स्टेटमेंट सही लगती है कि हाँ ये भी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होना चाहिए, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग क्या ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दी गई है इसको? नहीं। सर एक बार, by this logic first statement is not correct. Provision of adequate infrastructure in school, yes, essential prerequisite है but not sufficient. So by this way second statement is also incorrect. Now curriculum reform for developing child friendly learning system. अब उस पूरे पैसेज का अगर हम क्रक्स देखें तो उसने पूरे पैसेज में सिर्फ यही बात करी है, तो that's why statement number 3 is correct. First and second although by common sense will look correct, but if you read the passage and draw conclusion from there, तो first statement paramount importance नहीं है। हाँ जरूरी है कि राइट टू एजुकेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो पहले बोल रहा है, तो अगर हम पैसेज को स्ट्रिक करें तो नहीं, उसने इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस दी नहीं है पैसेज ने। पैसेज इज टॉकिंग अबाउट कि बियॉन्ड दिस क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में काउंटर क्वेश्चन आने चाहिए। सर एक बार यदि पैराग्राफ हिंदी में भी ठीक है। शर्मा किया नहीं क्या फोटो? मैंने सबको बोला था ना प्रिंट लेके करना एक बार। सर प्रिंट लेके तो काउंटर क्वेश्चन करो। सर एक पैसेज ऐसे कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चंस रीड कर लें और उसके बाद पैसेज से स्टार्ट करें। ऐसे में ऐसा होता है कि टाइम सेव हो जाता है। यदि अपन स्टार्ट से पैसेज करते हैं ना तो वापस से क्वेश्चन में मतलब बार बार पैसेज देखना पड़ता है ना, तो इन कंपैरिजन टाइम ज्यादा लगता है। हाँ तो तुम एग्जाम में वैसे ही करना ना। ओके ओके। हाँ एग्जाम में तो वैसे ही करना है, बट अगर तुम पैसेज, हेलो हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है, तुमने पैसेज पहले पढ़ लिया। जनरली ऐसा क्या होता है, अगर हम पहले मतलब ये मैंने नोटिस किया है, योर परसेप्शन माइट बी डिफरेंट, कि अगर हम पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं ना तो हम जनरली वही उन्हीं स्टेटमेंट्स को उसमें पैराग्राफ में देखने लग जाते हैं। लेकिन यूपीएससी के जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सीडीएस या उसकी तरह नहीं होते हैं कि डायरेक्ट तुम्हें मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुम्हारा कंक्लूजन है, लॉजिकल इन्फरेंस है, वो बहुत सारी चीजों को जोड़ के एक होलिस्टिक मैनर में होगा। तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि पहले तुम ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुम मतलब अपने ब्रेन में पूरा पैसेज एक साथ प्रोसेस कर पाओ और फिर मतलब क्वेश्चंस को देख के अलग अलग बांट पाओ, अच्छा ये था ये नहीं था। इससे तुम्हारी कैपेबिलिटीज डेवलप होगी, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो। हाँ मेरे लिए वो वाला ज्यादा सूटेबल है, हाँ क्वेश्चन से फिर पैसेज। हाँ तो यू स्टिक टू दैट। मैम अगर इसमें ऐसा ऑप्शन दिया रहता है कि 1 2 and 3 सब सही है तो फिर वही ज्यादा टिक करने का प्रोबेबिलिटी लग रहा है। हाँ लेकिन अगर तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी। मतलब तुम्हें आगे ऐसे पैसेजेस आएंगे, ऐसे बहुत सारे पैसेजेस होंगे जिसमें 1 2 3 सब करेक्ट दिया होगा, बट वो चीज होगी नहीं। सोयल वाले में भी तो 1 2 3 तीनों करेक्ट दिया था ना, लेकिन वही चीज तो आप लोगों को सीखनी है ना बार बार प्रैक्टिस करके, और वो आ जाएगी। अगर इसमें इन्फ्रेंस बोला होता तो 1 and 2 सही रहता ना? हाँ इन्फ्रेंस में सही रहता। इन्फ्रेंस मतलब, और ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का फिर डिफरेंस क्या हुआ? मतलब इन्फ्रेंस होता तो सही कैसे हो जाता? मतलब पैरामाउंट इंपॉर्टेंस मतलब एक सिंगल चीज किसको पैसेज वो कर रहा है। अच्छा, किस पे पैसेज मतलब ज्यादा फोकस कर रहा है ऐसा? हाँ, और उसमें क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन। ठीक है ये सही है कि अच्छा, क्योंकि उसने बोला है ना असेंशियल है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, तो पैरामाउंट नहीं होगा। लेकिन अगर इन्फ्रेंसेस, तो इन्फ्रेंसेस में तो इट इज ऑल्सो असेंशियल ना, तो उस केस में तो वो करेक्ट हो जाएगा ना। तब 1 2 3 वो उसी हिसाब से ऑप्शंस भी देगा।
अच्छा, हम्म इन्फ्लुएंस मतलब क्या होना चाहिए ना? हाँ, अगर इन शॉर्ट देखे तो इन्फ्लुएंस मोस्ट होलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, हाँ, और तो अगर वो स्टेटमेंट, पैसेज, हाँ तो लेकिन पैसेज में इन्फ्लुएंस से को जो बात है वो ले, की नहीं ना हाँ कि हाँ रुको, अगर इन कई बार वो ऐसे करता है, इन्फ्लुएंस को 2-3 स्टेटमेंट्स में तोड़ देता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, हाँ तो तीनों भी मोस्ट लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हो सकती हैं। अच्छा, बट इन्फ्लुएंस के अंदर बट ये जो पैसेज से भी तो लिंक होना चाहिए ना, तो हाँ, फर्स्ट और सेकंड तो फिर उसमें रॉन्ग हो जाएगा ना। कौन से वाला? जैसे अभी 17 के अंदर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, उसकी जगह हाँ इन्फ्लुएंस होता, हाँ तो इन्फ्लुएंस का भी मतलब लिंक तो जो ऊपर पैरा होना दिया हुआ चाहिए। है। हाँ, तो उसने बोला है एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए स्कूल्स में, उसने बोला है जरूरी है। अच्छा, तो ठीक सेकंड है, स्टेट, चलो सेकंड, हाँ। और हाँ फर्स्ट का कि पेरेंट्स की तो बात की भी नहीं है ना। एक सेकंड सर, एक बार ऊपर चलना। उसने यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन की बात करी है। हाँ, हाँ, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन कब होगा? जब पेरेंट्स अपने उसको स्कूल भेजेंगे, तो इन्फ्लुएंस तो इससे निकलता है ना। अच्छा, मैम हाँ फिफ्थ लाइन में दिया हुआ है ऑल चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, हाँ उससे हो जाएगा ना। हाँ ऑल चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन, हाँ हाँ, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस अलग मीनिंग है और इसका पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का पैराम पूरा अलग चीज है। हाँ, पैरामाउंट इम्पोर्टेंस मतलब एक सिंगल चीज क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है। Next, which of the following assumptions are made? Right to education guarantees teacher accountability for learning process of the children. Right to education guarantees 100% enrollment of children in the schools. क्या ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट अगर देखे, क्या राइट टू एजुकेशन ये गारंटी करता है, या राइट टू एजुकेशन इस चीज की तरफ स्ट्राइव करता है कि वी शुड अचीव 100% एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन? नहीं, अगर ये गलत है। होता तो नहीं, फिर आज यस आज होता ना, अगर ये होता तो आज की करंट सिचुएशन देखते तो हाँ, तो गलत राइट हो टू गया। right to education intends to take full advantage of demographic dividend. Do ये we भी have गलत। पैसेज में कहीं पे भी, जर्नल के हिसाब से ये सही है, पर कहीं पे भी हमने क्या बात करी है डेमोग्राफिक डिविडेंड की? नहीं, जीएस के हिसाब से ये होगा, पर पैसेज के हिसाब से क्या ये होगा? नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। तो इकलौता हमारा क्या बचता है? टीचर्स वन नंबर। अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि हम कितने ही रिफॉर्म कर ले, अगर टीचर अकाउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि एट लास्ट जो इम्प्लीमेंटेशन पैसेज में भी गिवन है, एट लास्ट जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है जो है एजुकेशन रिफॉर्म का, चिल्ड्रन को एक्टिव लर्नर बनाने का, वो टीचर्स के ऊपर है। उसके लिए टीचर अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। तो जो ऑथर है वो ये मान रहा है ना कि एजुकेशन क्वालिटी, ये अज्यूम कर रहा है ना कि हाँ कि टीचर अकाउंटेबिलिटी जो है, राइट टू एजुकेशन टीचर्स अकाउंटेबिलिटी गारंटी करेगा, तभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गारंटी होगी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। इसलिए उसने बोला है मस्ट एंश्योर दैट चिल्ड्रन आर लर्निंग एंड दैट देयर राइट टू लर्न इन अ चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट इज नॉट वायलेटेड। मस्ट मतलब गारंटीड। कंपल्सरी, 100%। इसको कंटिन्यू करें या सब लोग अभी एक बार वापस पैराग्राफ करेंगे, कल करें, ताकि एक बार थॉट लगा के चल सके सब लोग। बेनिफिट तभी होगा जब वापस प्रैक्टिस होगी। चलता रहा तो बस ठीक है, यू विल टेक द अदर्स पर्सपेक्टिव, नॉट द योर पर्सपेक्टिव। सर क्वेश्चन तो कर लिए, मतलब एक बार सारे की प्रिंट निकाल सबने कर कर, लिए? बट हाँ सर। यस सर, क्वेश्चन कर लिए थे। तो थॉट समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर, यस। काउंटर क्वेश्चन करना Clarity है। आ काउंटर क्वेश्चन नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, चल रहा है बस लेक्चर। हाँ। अब सर जैसे वो नेक्स्ट पैरा है तो वो प्ले विद वर्ड्स है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि मतलब अभी जो नेक्स्ट पैरा, इसके बाद में जो पैरा ना साइंस वाला, सर एक उसमें बार अंदर थोड़ा करना। वो अच्छा क्वेश्चन मतलब कि लगा कि कौन सा? इसके नीचे इससे सर। नेक्स्ट। ठीक है, 1 मिनट ऐसा करते हैं कोमल, 2 मिनट वापस टाइम दे देते हैं सबको। एक बार सब लोग, सबके पास पीडीएफ है ना, एक बार 2 मिनट पढ़ लो, उसके बाद हाँ चालू करते हैं। कोमल तुम बोलना मत, 2 मिनट सबको पढ़ने दो। ओके सर। एवरीवन रीड देयर ओन पैराग्राफ।
यस नाउ ए हो सकता है ऐसे शायद, इसका ए लगा। ए सर, ए ही लग रहा है सर। आंसर नहीं, ये हो लॉजिक। सकता है। आंसर बी नहीं, या लॉजिक। ए में लिखा है स्वप्न है, लिखा है। इसलिए मुझे लग रहा कि ये गलत है। ठीक। और तो पैसिफिक का आंसर तो यही है। सर लिखा हुआ है हेलो? विजन ऑफ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड। सर क्योंकि इसमें इसमें लिखा है विजन ऑफ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड, तो उसका विजन तो वही है ना, सुखद विश्व। सर एक बार और आंसर में ड्रीम लिखा सारे है। स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। कमल डिस्कस। scientific knowledge has its dangers but has every but so has every सर एक बार इसको थोड़ा जूम कर देंगे। But so has every great thing, over and beyond the dangers with which it threatens the present. It opens up as nothing else can the vision of possible happy world. A world without poverty, without war, with little illness, science, whatever unpleasant consequences it may have, by the way, is a in its very nature is a liberator. अब उसने इसका मोस्ट लॉजिकल इम्प्लीकेशन पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। नेक्स्ट, साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड बट it is also the only major threat. ठीक है, तुम्हें लग सकता है कि हाँ ये भी करेक्ट है। a happy world is not possible without science. A happy world is not at all possible with or without science. तो थर्ड डी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। उसने पॉसिबिलिटी ऑफ हैप्पी वर्ल्ड की तो बात करी है, तो सॉरी डी गलत हो गया। उसके बाद हमें बाकी तीन हमें कंफ्यूजन लगेगा क्या है। अब अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़े कि ओवर एंड बियॉन्ड द डेंजर्स, कि उन डेंजर्स के बियॉन्ड भी अगर हम देखें, विद विच इट थ्रेटन्स द प्रेजेंट, उन डेंजर के बियॉन्ड भी हम अगर देखें, इट ओपन्स एज नथिंग एल्स कैन, मतलब ये उतना ओपन करता है जितना कि कोई नहीं कर सकता। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब कि साइंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, एक बहुत बड़ा डोर ओपन करता है, किसके लिए? एक हैप्पी वर्ल्ड के लिए। एज नथिंग एल्स कैन, मतलब ऐसा नहीं है कुछ और बिल्कुल भी नहीं करता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। ये लगेगा कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, पर ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। ही हैज सेड इट ओपन एज नथिंग एल्स कैन। नथिंग एल्स कैन मतलब इतना ज्यादा और कोई ओपन नहीं करता है जितना साइंस, मतलब देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। अब अगर ये देखोगे कि हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, ये तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट होगी, क्योंकि उसने बोला है कि अदर फैक्टर्स आर आल्सो। इस स्टेटमेंट से ये वही वाला वर्ड प्ले है, यहाँ पे लगेगा कि हाँ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि साइंस के बिना जो है हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर अदर फैक्टर आल्सो। इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सी इज रॉन्ग। अब क्या है? साइंस कैन ओनली बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड बट इट इज आल्सो अ मेजर थ्रेट। लेकिन ये बोल रहा है कि ओवर एंड बियॉन्ड द डेंजर्स, कि उन डेंजर्स के बियॉन्ड भी एक हम हैप्पी वर्ल्ड की कल्पना कर सकते हैं अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो। तो इस वजह से ये थर्ड भी गलत हो जाएगा। A happy world is a dream of science. हाँ, this can be said कि beyond these dangers and these threats also we can make a happy world possible out of science. हाँ, तो first statement would be right by this thing. और ये आपको और भी आगे बहुत सारे पैसेजेस में ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे वो nothing else can, always, almost always, तो ये सारे वर्ड्स जैसे जीएस पेपर 1 में ट्रैप होते हैं, ऐसे ही इसमें भी ट्रैप होते हैं। और यहाँ पे वो यही करेगा, एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देगा और आप उस पे आपको लगेगा कि हाँ ये करेक्ट है, पर वो करेक्ट नहीं होगी। आपको उसको ब्रेक करना आना चाहिए, जैसे कि हमने इस स्टेटमेंट को ब्रेक किया है। हेलो हाँ मैम, इसमें दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट में ओनली मेजर थ्रेट, मतलब ओनली तो इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो बी भी गलत हो जाएगा इस तरह से, उसी वजह से तो गलत होगा।
हाँ उस वजह से भी गलत होगा। ओनली लिखा है, एब्सोल्यूट हाँ नहीं। हाँ गलत होगा, सही है। तो इसलिए तो ऑप्शन ए है आंसर। यस वो सही था। आ गया समझ में? हाँ मैम सी क्यों नहीं होगा इसका आंसर? A happy world is not possible without science. This is a absolute statement. उसने क्या कहा? It open up as nothing else can. ये उतनी अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है जितनी और कोई अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं कर सकता। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, इट ओपन अप एज नथिंग एल्स कैन। और भी जरिए हैं हैप्पी वर्ल्ड के, बट ये एक मेजर जरिया है। तो ये कहना कि इसके साइंस के बिना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, ये तो एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गई ना। यही चीज तो वर्ड प्ले है यहाँ पे। जहां पे भी ऐसे स्टेटमेंट आ जाए, इन जनरल, ऑलमोस्ट ऑलवेज, वो आपको एब्सोल्यूट लगेंगे। इट ओपन अप एज नथिंग एल्स कैन। ऐसे ही और आप डेमोक्रेसी से रिलेटेड और पैसेजेस पढ़ोगे, उनमें भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रखी है। तो वो सारी स्टेटमेंट इसी वजह से गलत होंगी। ओके नेक्स्ट। Many farmers use synthetic pesticides to kill infesting insects. The consumption of pesticide in some developed countries is touching 3,000 grams per hectare. Unfortunately, there are reports that these compound possesses inherent toxicity that endanger the health of farm operators, consumers, and the environment. Synthetic pesticides are generally persistent in the environment. Entering in the food chain, they destroy the microbial diversity and cause ecological imbalance. These indiscriminate use resulted in development of resistance among insect to insecticide, upsetting of balance in nature, and resurgence of treated populations. Natural pest control using botanical pesticides is safer to use to user and environment because they break down into harmless compound within hours or days in the presence of sunlight. Plants with pesticidal properties have been in nature for millions of years without any ill or adverse effect on the ecosystem. They are easily decomposed by many microbes common in the soil. They help in maintenance of ecological diversity of predator and reduction of environmental contamination and human health hazard. Botanical pesticide formulated from plants are biodegradable and their use in crop protection is practical sustainable alternative. Question is, which of the following assumptions have been made? Synthetic pesticide should never be used in modern agriculture. क्या उसने ये कहीं पे भी ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स? हाँ उसने ये दिया है कि बहुत हाई अमाउंट में यूज हो रहा है, पर क्या उसने कहीं पे भी ऐसा कोई स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया है कि मॉडर्न साइंस में हमें कहीं पे भी जो है सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना चाहिए? क्या वो ये अज्यूम करके चल रहा है, ये अजम्पशन है उसकी? उसने सिर्फ एक, इसमें क्या है, ऑथर ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के ये हार्म है और जो है उसका जो अल्टरनेटिव है उसके ये बेनिफिट्स हैं। पर क्या वो एक अजम्पशन कर रहा है कि मॉडर्न साइंस में हमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का बिल्कुल यूज नहीं करनी है, शुड नेवर बी यूज? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। One of the aims of sustainable agriculture is to ensure minimum ecological balance. ठीक है, उसने क्या बोला है? Biodegradable and their use in crop protection is a practical sustainable alternative. हाँ ये स्टेटमेंट सही लगती है। Botanical pesticides are more effective as compared to synthetic pesticides. अब दो चीजें होती है, एक इफेक्टिव होना, इफेक्टिव होने का मतलब क्या है? उस चीज की एफिशिएंसी ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ये ट्रैप है, इफेक्टिविटी अगर देखी जाए तो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स की ज्यादा होती है, वो डायरेक्ट अटैक करते हैं पेस्ट पे, और जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो एक मिनिमम इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो अगर देखा जाए, हम इस वर्ड को अंडरलाइन करें, मोर इफेक्टिव,
अगर आप एक बार रीड करें और निकल गए तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब सही तो है, ये पूरा यही तो कह रहा है, पर इफेक्टिव होने में और बेटर अल्टरनेटिव होने में तो डिफरेंस है ना। सारे अगर कोज एंड कंसिक्वेंसेस को हम मिलाए तो अल्टरनेटिव पेस्टिसाइड्स आर मोर सस्टेनेबल, और जो सस्टेनेबल हो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो ये जरूरी तो नहीं है। इफेक्टिवनेस तो किसकी ज्यादा होती है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की ज्यादा होती है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है, मोर सस्टेनेबल है। तो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट 3 इज आल्सो इनकरेक्ट, तो आंसर शुड बी बी। सेकंड का जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब हाँ। अपन इस लाइन से निकाल सकते हैं आंसर की, दे हेल्प, नीचे से थर्ड लाइन, दे हाँ। हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ मतलब इजीली डिकम्पोज्ड बाय मेनी, इससे हाँ। अपन निकाल सकते हैं और कि वन ऑफ हाँ, मिनिमम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है ना। और ये भी तो है, बोटेनिकल पेस्टिसाइड फॉर्मेलिटेड फ्रॉम प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड देयर यूज इन क्रॉप प्रोटेक्शन इज अ प्रैक्टिकल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव। हाँ हाँ, तो वो क्रॉप्स के बारे में यानी एग्रीकल्चर के बारे में तो बात कर रहा है। हाँ हाँ। तो आपको ये सारे वर्ड्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको सब ये आते जाएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स है, जहाँ पे कैसे कैसे वर्ड्स है जिनके साथ यूपीएससी ट्रैप करता है, या फिर जिनको हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, या फिर ढंग से इंटरप्रेट नहीं करते, या फिर कहाँ पे हमारा जनरल नॉलेज हमारे साथ इंटरफेरेंस करता है। क्योंकि हम कलोकियल लैंग्वेज में तो हम क्या करते हैं, यही तो बोल देते हैं कि हाँ ये इफेक्टिव ज्यादा, पर इफेक्टिवनेस और सस्टेनेबिलिटी तो दो डिफरेंट चीजें है ना। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। Next is productive jobs are vital for growth and a good job is best for inclusion. More than half of the population depends on agriculture, but the experience of other countries suggests that a number of people dependent on agriculture will have to shrink if per capita income in agriculture has to go up substantially. While industry is creating jobs, too many such jobs are low productivity and non-contractual jobs in unorganized sector, offering low incomes, little protection, and no benefits. Service jobs are relatively high productivity, but employment growth in services has been slow in recent years. अब इससे मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या होगा? हाँ, मैंने इसका आंसर मतलब बी मार्क किया था। हाँ, शायद इसका आंसर अभी हाँ, तो देखते हैं। इसमें बी और सी में आपको देखो, फर्स्ट है वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन। हाँ, पैराग्राफ के हिसाब से सही लगेगा, पर हमसे क्या पूछा है, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। We must shift from farm workers to highly productive manufacturing and service sector to ensure economic growth and inclusion. पर उसने तो खुद ही बोला है ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारा, जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो जॉब तो क्रिएट कर रहा है, बट वो क्या है, लो प्रोडक्टिविटी है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है जो कि लो इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं, लिटिल प्रोटेक्शन एंड नो बेनिफिट्स। हाँ हाँ। बाय दिस लॉजिक सेकंड स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट ना। अच्छा, कि हमें हाई प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट करना चाहिए। उसने तो बोला है ना कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर है वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ये सारी चीजें हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में सेक्टर में है। वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव जॉब्स outside of agriculture even while improving the productivity of agriculture. अब ये स्टेटमेंट अगर आप देखो तो उसने क्या बात किया है कि प्रोडक्टिव जॉब्स इंक्लूजन के लिए जरूरी है। सेकंड चीज, हमारी मोस्ट ऑफ जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, ग्रेटर देन हाफ, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर को मतलब इंक्लूजन के लिए जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़नी चाहिए, और उसके लिए उसमें जो डिपेंडेंट लोग हैं वो कम होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा उसने बोला है कि जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है वो लो प्रोडक्टिविटी और ऐसी ऐसी चीजें हैं। और थर्ड उसने जो बोला है वो क्या है, सर्विस सेक्टर में जॉब्स हैं वो हाईली प्रोडक्टिव है, लेकिन जो जॉब ग्रोथ रेट जो है वो कम है। तो अब अगर आप सी स्टेटमेंट देखें कि हमें जो है, उसने बोला है वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव जॉब्स। हाँ, सर्विस सेक्टर में प्रोडक्टिव जॉब है और उनमें हमें फास्टर ग्रोथ के करनी चाहिए। हाँ, उसने ये बोला है कि वी
क्योंकि क्या है, मेन प्रॉब्लम तो ये है कि सर्विस सेक्टर में जो जॉब ग्रोथ रेट है वो लो है, तो हमें उसी के लिए कंडीशन क्रिएट करनी है आउटसाइड द एग्रीकल्चर इवन वाइल इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्यों इंप्रूव करनी है, क्योंकि उसने पहले स्टेटमेंट में बोला है कि हमारी कंट्री की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन किस पे है, एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर में हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे आएगी, प्रोडक्टिविटी से आएगी। तो यस, अगर देखे इस पूरे पैराग्राफ का, अगर इसको आप 3 हिस्सों में तोड़े तो इसका मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन क्या आ रहा है, यही आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, वी मस्ट एम्फसाइज ऑन हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटीज। उसने कहीं पे भी बात ही नहीं करी है कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड पे जाना चाहिए या फिर हमें प्रिसीजन फार्मिंग पे जाना चाहिए, उसने कहीं पे भी ऐसी बात नहीं की है। तो इफ यू सी, अगर आप मैंने पहले भी बोला है, ऐसे जो आए मतलब जिसमें मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस पूछा हो, आप बांटे कि अच्छा ये 3 स्टेटमेंट मेन है और इनका मोस्ट होलिस्टिक ये निकलता है। हमें जॉब्स किसमें चाहिए, हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। मैन्युफैक्चरिंग उसने पहले ही बोल दिया, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो क्रिएटिंग जॉब, हाँ जॉब क्रिएट कर रहा है, लेकिन टू मैनी सच जॉब्स, मतलब क्या है, ज्यादातर ये जो जॉब्स हैं वो क्या है, लो प्रोडक्टिविटी में, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल में। तो मतलब क्या है, हमें किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट करना चाहिए, जो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो, और ज्यादा प्रोडक्टिव यानी सर्विस सेक्टर में। और तीसरी स्टेटमेंट इसने यहाँ पे कहीं पे सर्विस सेक्टर की भी बात नहीं की, उसने जस्ट बोला है कि हमें प्रोडक्टिव जॉब्स की तरफ मूव करना चाहिए। और आउटसाइड द एग्रीकल्चर बोला तो मतलब कि एग्रीकल्चर के बाहर, हाँ, क्योंकि उसने बोला है कि हमें एग्रीकल्चर से बाहर मूव करना है और हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इसमें है, तो इस वजह से, और हमें पर कैपिटा इनकम भी बढ़ानी है उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो हाँ, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड। इसका क्या मतलब है कि जो नीचे दिया मोर होलिस्टिक और ये बिस्लरी वर्सेस बिल्ड से मतलब, क्योंकि हमें इसमें बेसिकली इसमें बताना ये चाह रही हूँ कि हमें लगेगा कि मतलब जो है कि ये करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जैसे आप बोल रहे हो, लगा कि मुझे लगा वो करेक्ट है। आपको मैन्युफैक्चरिंग जैसे आया हाईली प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, उसने तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का खुद ही बोल दिया है ना कि वो एक्चुअल में क्या है। मतलब आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, पर वो एक्चुअल में करेक्ट होगा नहीं, वो सिर्फ आपका माइंड बोल रहा होगा कि हाँ ये करेक्ट है, ये ऐसा दिख रहा है, पर आपको एक्चुअल में प्रोसेस करना पड़ेगा, परसीव करना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टांस में आपको यही लगेगा कि हाँ ये ठीक है, जैसे वो बोतल को देख के लगता है अच्छा बिस्लरी की तो है, नहीं, पर एक्चुअल में जब आप उसको रीड करते हो ना, यू गिव योर ब्रेन टाइम टू एनालाइज, तो वो अब वहां पे, हाँ एग्जैक्टली, वहां पे टाइम की प्रॉब्लम होगी, और वो टाइम की प्रॉब्लम आपको अभी रिड्यूस करके जानी पड़ेगी। अगर आप डेली 5-5, 7-7 पैसेजेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर वो इनबिल्ट हो जाएगा। अच्छा आपने ये वर्ड देखा, आप उसको मार्क करेंगे तुरंत, फिर हाँ मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपन वो कैच कर पाएंगे फटाफट कि ये वर्ड से। अच्छा हाँ, योर आईज कैन नॉट सी व्हाट योर ब्रेन डजंट नो। हाँ, तो आप अपने ब्रेन को रोज फीड करोगे ना कि अच्छा ये ऐसी चीजें गलत होंगी, ऐसी चीजें सही होंगी, तो आपकी आईज भी उसी हिसाब से फिर चीजों को कैच करने लग जाएंगी। सही है, सही, ठीक है। नेक्स्ट वी कंटिन्यू दिस और कल करें, एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, वापस थॉट को फीड अप करो। ठीक है सर, कल का टाइमिंग पूछ रहा हूँ मैं, कल करते हैं चलेगा, कैसे भी चलेगा सर। हाँ सर कल चलेगा, कल नहीं फिर परसों करते हैं, ताकि 1 दिन 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। 11-12 का जो पेपर है यूपीएससी का 2011, 12, 13, उस पर एक बार थॉट को अप्लाई करो। ठीक है सर, 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, फिर हम ट्यूसडे कर लेंगे, ताकि एक बार वो तो पता लगे ना कि कितना हुआ है। ठीक है सर। 11, 12, 13 का ना सर, इस ईयर के रीडिंग कॉम्पिटिशन, प्रीवियस ईयर के 11, 12 और 13 के आरसी। हाँ, एक पेपर ले लो और उस पर अप्लाई करो, या 20 का ले लो। अच्छा हाँ, 20 का तो ऑफिशियल की है ना, मैंने ग्रुप शेयर किया हुआ है ना, जहाँ पे यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर और ऑफिशियल की है सीसेट का, उसी से करना, ऑफिशियल की को ही रेफर करना। ठीक है सर, तो 2020 वाला कर लेते हैं। 2020 का कर लो, नहीं है तो मैं ऑफिशियल की भेज देता हूँ। हाँ सर, एक बार भेज दें। ठीक है, मैं ऑफिशियल की 20 की भेज देता हूँ। ठीक है, 20 का ओरिजिनल पेपर भेज देता हूँ और वो भेज देता हूँ, वहाँ एक बार थॉट अप्लाई करो। हाँ सर, ठीक है सर, है ना। उसमें ये भी कर सकते हो, 2 जने हो तो 2 जने करो, दोनों काउंटर क्वेश्चन करो, मतलब एक बार करके एक बार रूम पर काउंटर क्वेश्चन करो। ठीक है, ठीक है।
Thank ये you, मेरे साथ ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जब यू विल गेन, अदरवाइज लेक्चर ही चलेगा। चलो ठीक है, पेपर शो करते हैं। ठीक। थैंक यू सर। ठीक, thank you. थैंक यू।